the sales budget. Today we will start sales budget. Last class we have discussed what is budget and what is budgetary control. You will find the main object of the cost accounting is to reduce the cost of production. There are three elements as we have discussed: profit, sales and cost. Profit, sale and cost. If sales is increased, definitely your profit is also increased. If sales is decreased, definitely profit is decreased. If cost is increased, definitely profit is decreased, and cost is decreased means your profit is increased. So in the annual general meeting, it is decided that sales must be increased in this particular year. So increase of sales always based on your research. Clear my point? Through research, maybe primary source, you will get primary source of data. You will also collect secondary source of data. If there is any chance of increase of sales, then definitely your production cost means this is related to your production. Production means your material, labor and your overhead. That means sales budget play a vital role. मान लीजिए हम लोग 5000 यूनिट लास्ट ईयर सेल्स कर रहे थे. इस साल हम चाहते हैं कि सेल्स 6000 यूनिट हो. अगर 1000 यूनिट हम सेल्स बढ़ाना चाहेंगे तो आपको उस हिसाब से प्रोडक्शन भी बढ़ाना चाहिए. अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मटेरियल भी उस हिसाब से परचेज होना चाहिए, उस हिसाब से लेबर भी होना चाहिए, उस हिसाब से ओवरहेड भी होना चाहिए. इसीलिए सबसे पहले हमको बनाना पड़ता है सेल्स बजट. इसका एक सीक्वेंस है, मैं आपको बता रहा हूं. उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, लेबर बजट पे. अभी हम बात करते हैं सबसे पहले बनता है सेल्स बजट. कौन सा बजट बनता है? सेल्स बजट. क्लियर माय पॉइंट? सबसे पहले बनता है सेल्स बजट. सबसे पहले आप लोग का बनता है सेल्स बजट. Sales budget means this is related to your quantity sold and the price. Quantity sold and price. Clear my point? Quantity sold means quantity of finished product to be sold. Quantity sold means quantity of finished product to be sold. So quantity of finished product to be sold. Price means price at which product to be sold. So sales related to two things. One is quantity and another is your price. Sales always related to two things. Remember, quantity of finished product to be sold and the price at which the product to be sold.
So when we are talking about the sales budget, then these two things, quantity and the price, play a vital roles. Next write down types of sales budget. कितना तरह सेल्स बजट हम बना सकते हैं? टाइप्स ऑफ सेल्स बजट. टाइप्स ऑफ सेल्स बजट. टाइप्स ऑफ सेल्स budget. Types of sales budget. Please write down. First is your sales budget product wise. Sales budget product wise. इसका मीनिंग ये है, सपोज ए पार्टिकुलर कंपनी प्रोड्यूस्ड 4 type of finished product, 1, 2, 3 and 4 type of finished product. Then for each product there must be a separate sales budget. This is called product wise sales budget. जितना प्रोडक्ट होगा उतने ही तो प्रोडक्ट वाइज बन जाएगा, A B C D 1 2 3 करके. दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट वाइज सेल्स बजट. दूसरा हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं प्रोडक्ट वाइज के बाद एरिया वाइज सेल्स बजट. एरिया वाइज मीन्स टोटल इंडिया एज ए होल. It is divided into 5 zones. Different company divided whole of India into different zone. But take for example, a specific company may divide whole of India in 5 zones: North zone, East zone, West zone, South zone, and Central zone. Suppose then here it is says that area wise sales budget, east zone sales budget, west zone sales budget, साउथ जोन्स. क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? आप कभी भी देखेंगे हर प्रोडक्ट हर जगह में अच्छा चल नहीं पाता है. ऑल प्रोडक्ट आर नॉट शेयर इन ऑल द एरिया. दैट्स व्हाई सम ऑफ द प्रोडक्ट growth is you will find in north zone. Some of the product you will find its growth in south zone. Different zone is there and accordingly the growth is there. So that's why company may thinks in which zone sales will be increased in this particular budgeted period. What are the different geographical location where our sales will be increased? That is why your zone wise or area wise or geographical location wise you will prepare your sales budget. And third one you will write down period wise sales budget. Period means you may prepare monthly budget, then quarterly budget, yearly budget. This is your period wise, that is called budgeted period. Budgeted period may be half yearly, yearly, may be your quarterly, may be monthly. That will be decided by the company. The budgeted period, it is decided by the company. Next is your customer wise. Budget may be prepared customer wise. Customer wise means your credit customer may be there, those who are regularly purchase and sell of your product. Clear my point? Then your salesman wise budget may be prepared salesman wise. You will find in which area you are going to push up your sales
and in that particular area certain incentives is given, certain benefit is given, नहीं? So salesman target is also fixed up, salesman का target भी fix up करते हैं, उसको incentive भी देते हैं, commission भी देते हैं, benefit भी देते हैं, उस हिसाब से आपका budget बनता है. So sales budget you may prepare in 5 different types. It may be product wise, it may be area wise, it may be period wise, it may be customer wise, it may be salesman wise. So these are the types of sales budget. Clear my point? Acha. Now we will discuss first you will prepare your sales budget. First we will prepare sales budget. According to sales, अगर हमको ज्यादा सेल्स बढ़ाना है तो नेचुरली आपको प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा. क्लियर माय पॉइंट? अगर आपको सेल्स बढ़ाना है then accordingly you will increase your production also. So first is your sales budget. This sales budget is called foundation of budget. Sales budget in other word called, it is a foundation of budget. यहां से बजट चालू होता है. अगर आप सेल्स बढ़ाना चाहेंगे ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी बढ़ेगा. बिना प्रोडक्शन बढ़ाए तो सेल्स नहीं होगा ना. तो इसीलिए पहले सेल्स बजट, सेकंड आपको बनाना पड़ेगा प्रोडक्शन बजट. After your production budget, you will find material purchase budget, then labor budget, material budget, labor budget, and overhead budget. So first is sales budget, second production budget, third one material budget, third labor budget, and fourth one is your overhead budget. ये सारा बजट बनने के बाद हम लोग का बनता है कैश बजट. बिना कैश का तो आपका रॉ मटेरियल खरीदा नहीं जा सकता है. बिना कैश का लेबर को पेमेंट करना मुश्किल है. तो ये हर डिपार्टमेंट अपना अपना कैश का रिक्वायरमेंट बजट के माध्यम से देंगे और लास्टली यू विल प्रिपेयर योर कैश बजट. लास्ट कंबाइन टुगेदर सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, लेबर बजट एंड overhead budget. If you combine together, then only you will prepare your cash budget. Clear my point? Cash budget disclose the inflow of cash and the outflow of cash. ये कैश कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, that is detail mention in the cash budget. कैश बजट बनाने के बाद अगर हम टोटल को फिर मिला देते हैं, then you will get master budget. So after cash budget, you will prepare your master budget. Clear my point? और अगर टोटल बजट को हम दो तरह से बना सकते हैं. वन इज कॉल्ड फिक्स्ड बजट and another is called flexible budget. Clear?
one is called fixed budget, another is called your flexible budget. हम कोई भी चीज को फिक्स्ड बजट में भी बना सकते हैं और फ्लेक्सिबल बजट में से भी बना सकते हैं. So what is fixed budget? Please write down, otherwise you will take screenshot also. Clear my point? Fixed budget and the flexible budget. What is fixed budget? Fixed budget का मतलब, मान लीजिए मेरा अभी का प्रोडक्शन है 5000, मैं प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता हूँ 1000, इट मींस 6000. मैं अभी सेल्स बढ़ाना चाहता हूँ 6000. अगर सेल्स को मैं बढ़ाऊंगा 5000 से 6000, ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली लेबर मटेरियल भी बढ़ेगा, लेबर भी बढ़ेगा, ओवरहेड भी बढ़ेगा. टोटल ये जो 5000 प्रोडक्शन प्रेजेंटली है, इसको जो मैं 6000 में कन्वर्ट करूंगा, इसको बोलते हैं फिक्स्ड बजट. इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड बजट. हम फिक्स्ड यूनिट को ले रहे हैं, दैट इज 6000. बट इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, मान लीजिए मैं 6000 में भी यूनिट में क्या पोजीशन होगा, 7000 यूनिट में क्या पोजीशन होगा, 8000 यूनिट. ये मैं 3 स्टेजेस का बजट निकाल रहा हूं. 6000 सेल्स करूंगा तो क्या इफेक्ट होगा बजट को, 7000 में क्या होगा, 8000 में कॉस्ट इफेक्टिव क्या होगा. ये हम फ्लेक्सिबल रखे हैं. 6000 अगर हमको 7000 कॉस्ट इफेक्टिव दिख रहा है, हम 7000 प्रोडक्शन करेंगे. ये 3 लेवल का, ये फ्लेक्सिबल लेवल है. कोई भी लेवल को हम बाद में पिकअप कर सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड लेवल जो है ये फिक्स है. 6000 मतलब 6000 के हिसाब से ही आपका बजट बन जाएगा. क्लियर माय पॉइंट? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड बजट एंड योर फ्लेक्सिबल बजट. क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस how sales budget is prepared. How sales budget is prepared? By taking a questions, we will try to understand the sales budget. So please write down questions. Questions को हम लिखते हैं. X and company submit the following information. X and company submit the following information for product X. For product X, X and company submit the following information for product X for the month of January 2015. For the month of January 2015. So please write down. January production is 10,000 unit cell. For the quarter लिखिए. For the quarter जनवरी मत लिखिए. For the quarter 2015, January sales 10,000 unit sales. February 2015 sales 8,000 unit sales. For the month of March 12,000 unit sales. 12,000 unit sales. Selling price per unit, selling price
per unit, selling price per unit rupees 100, selling price per unit rupees 100. Target for second quarter, टारगेट फॉर सेकेंड क्वार्टर. ये फर्स्ट क्वार्टर का डाटा दिया है, हम लोग को बोल रहा है सेकेंड क्वार्टर का डाटा निकालो. सेल्स यूनिट increase by 10%. In second quarter sales unit will be increase. इसको 10 नहीं 25% कर दो. 25% sales unit increase by 25%. Selling price increase by 10%. Selling price increase by 10%. Selling price increase by 10%. Clear? क्वेश्चन बोल रहे हैं according to past experience, a loss of 3%, 2% return loss, and 1% bad debt. 1% is your bad debt. Combined together, this comes to your 3%. This is your questions. Please write down the questions or you may take a screenshot. मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, आप लोग इसको लिखिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ. स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए. इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ऊपर में लिखेंगे सेल्स बजट फॉर सेकेंड क्वार्टर for the year 2015. For the year, so please write sales budget for second quarter for the year 2015. इसको आपको 3 कॉलम बनाना पड़ेगा. बना लीजिए कॉपी में. पहले 3 कॉलम बनाइए. तीन कॉलम बना दीजिए. पहला में लिखिए पार्टिकुलर्स, फर्स्ट यू विल रिकॉर्ड पार्टिकुलर्स. सेकेंड जनवरी मंथ, सेकेंड फरवरी मंथ, एंड दिस इज योर मार्च. और एक कॉलम भी बना देंगे, बढ़िया रहेगा. टोटल जनवरी, फरवरी, मार्च एंड टोटल 4 कॉलम बना दीजिए, समझने में इजी होगा. सबसे पहले लिखेंगे एक्सपेक्टेड सेल्स इन यूनिट.
expected sales in unit. आप क्वेश्चंस को देखिए. क्वेश्चन says that in the month of January 10,000 units sold. 10,000 units sold. In the month of January 10,000 units sold. But budgeted figure says that this will increase by 25%. That means 25% of 10,000 comes to 2,500. So this comes to unit is 12,500 unit. Now rate says that price will increase 10%. So price पहले कितना था? Price था 100, increase 10% means 110. Price 110 means 12,500 unit multiply into 110. Multiply into 110. और इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं. क्लियर? यहां ऐसे भी कर सकते हैं. टोटल यूनिट 10,000 increase 25%. This comes to 12,500 unit. Multiply into selling price. Selling price कितना था? 100. Multiply into 10%. This comes to 110. So multiply into, अगर 110 करेंगे तो कितना आएगा? बताओ आप. मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,75,000. क्लियर? क्वेश्चंस बोल रहा है कि जनवरी मंथ में सेल्स का 10,000 और सेल्स को 25% बढ़ाना है. तो 10,000 का 25% 2,500. टोटल कम्स टू 12,500 यूनिट. लास्ट क्वार्टर का सेलिंग प्राइस कितना था? 100 था. उसमें कितना इंक्रीज करना है? 10%. 100 प्लस 10 110 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई इनटू यूनिट सोल्ड. द टोटल अमाउंट इज 13,75,000. लाइक दैट इन द मंथ ऑफ फरवरी में कितना था क्वेश्चन के हिसाब से? 8,000 unit. So he will increase 25%. 25% of 8,000 कितना होगा? 2,000. So 2,000 unit will be sold in the month of February. Clear my point? So selling price is remain same. Multiply into 110. This comes to 11 lakhs. In the month of March, again he will increase 12,000. 12,000 हम लोग का यूनिट था, इसका 25% बढ़ाना है. तो कितना आएगा ये 25% बढ़ाने से? 3,000. मतलब 12 plus 3 15,000 यूनिट. Multiply into 110. This comes to your 16,50,000. 16,50,000. Clear my point? This is converted into your rupees. Clear? अच्छा, टोटल कितना होगा? टोटल यूनिट को अगर हम जोड़ते हैं ये हो जाएगा 37,500 यूनिट. क्लियर? 110 मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आ जाएगा 41,25,000. 41,25,000.
5000। समझ में आ रहा है आप सबको? अच्छा, इसी में इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू। एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू, हम इसको कहते हैं एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू। इसमें से लेस करेंगे, लेस 3% लॉस, that is bad debt, and your returns, 2% return and 1% bad debt। यहां से हम लोग माइनस कर देते हैं, इसका कितना होगा? 13,75,000 का 3% 41,250, 41,250 comes to 13,33,750। Again you will calculate 11 lakhs का 3% loss, that comes to 33,000, that comes to 33,000। Then you will get 10,67,000। Clear my point? Again you will calculate 16,50,000 का 3%, 49,500 माइनस करेंगे तो आएगा 16,500। अगर यहाँ पे भी 3% हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 1,23,000, 1,23,750, 1,23,750। So 40 lakhs 1,250। Clear my point? So this is how you will prepare your sales budget, net sales value। ये लास्ट को बोलते हैं हम लोग net sales value, net sales value। This is one way of calculation of your sales budget। This is one way of calculation of sales budget। Clear? आप इसको लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसको फिर मैं मिटा देता हूं। ये एक तरीका है आप लोग को सेल्स बजट निकालने का। ये जो क्वेश्चन था एकदम सिंपल क्वेश्चन था सेल्स बजट निकालने का। और ये जो मैं फॉर्मेट बताया ये डायरेक्ट पीरियड वाइज में बताया, मंथ वाइज। और बाकी केस में आप लोग जो बजट निकालेंगे उसका फॉर्मेट मैं बता देता हूँ, उसके हिसाब से आप घर में करना। जोन वाइज रहता है, टेरिटोरी वाइज रहता है, ये सारा का अलग सा फॉर्मेट होता है। मैं फॉर्मेट बता देता हूँ। मान लीजिए हमको जोन वाइज करना है तो ये फॉर्मेट को बनाइए, आपको समझने में इजी होगा। क्लियर? पहले हम लिखेंगे जोन। मान लो हम लोग का जोन है साउथ जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन एंड वेस्ट जोन। 4 जोन है। तो पहले आप जोन लिखेंगे साउथ जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, अगर जोन के हिसाब से है तो। उसके बाद लिखेंगे प्रोडक्ट। मान लीजिए आपका 2 प्रोडक्ट बेचते हैं तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट, यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ए
और प्रोडक्ट बी। यहाँ भी लिखेंगे प्रोडक्ट ए बी, हर जगह पे प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग सेल्स बजट बनेगा, मैं आपको बता रहा था। उसके बाद इस रेस्ट को आप 3 कॉलम में डिवाइड करिए, इसको 3 कॉलम में डिवाइड करिए। इसको सबको 3 कॉलम में डिवाइड करिए, एक एक कॉलम को फिर 3 कॉलम में डिवाइड करिए। इसको बीच वाला जो है छोटा रखिए, 3 कॉलम में आप डिवाइड करिए इस चीज को। तो पहले लिखेंगे करंट बजट, करंट बजट, करंट बजट मतलब जो आपका पास्ट में बजट बनाए थे उस हिसाब से आप उसको बोलते हैं करंट बजट। करंट एक्चुअल, करंट एक्चुअल इसका मतलब ये है, हम लोग जो मान लीजिए पहला क्वार्टर में जैसे बजट बनाए थे उसको बोलते हैं करंट बजट। और करंट एक्चुअल मतलब इस बजट को कंट्रोल करके एक्चुअल कितना कितना खर्चा हुआ, सेल्स हुआ, उसका डिटेल्स। अब थर्डली हम लिखेंगे न्यू बजट, यहां लिखेंगे न्यू बजट। यहां लिखेंगे न्यू बजट। क्यों ये न्यू बजट है? हम पास्ट डाटा को लेते हुए न्यू बजट बनाएंगे। पास्ट डाटा भी आ गया आपका, मतलब पास्ट बजट कितना में बना था, एक्चुअल अचीवमेंट कितना हुआ था, अब क्या करना है, ये तीनों चीज आप उसमें लिख दीजिए। और यहां क्या भर्ती करना है? यहां भर्ती करना है क्वांटिटी, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट। क्वांटिटी, प्राइस, यहां लिखना है अमाउंट। यहां भी आप क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट। मान लीजिए ये हम लोग का जोन वाइज है, मैं कुछ डाटा भर्ती कर देता हूं, उस हिसाब से आप ये पुराना डाटा, ये सारा चीज आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा। ये दोनों डाटा, करंट बजट का डाटा भी दिया रहेगा, करंट एक्चुअल भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और बोलेगा खाली न्यू बजट बनाओ। मतलब इस कॉलम में हमको सारा काम करना है, यहां से इंफॉर्मेशन लेना है। दैट मींस करंट बजट से इंफॉर्मेशन लेंगे, करंट एक्चुअल से इंफॉर्मेशन लेंगे, और न्यू बजट हम लोग बनाएंगे। ये फॉर्मेट है। बाकी सब में लगता है ये फॉर्मेट, 2 फॉर्मेट यूज होता है। पहले जो मैं क्वेश्चंस में बताया वो एक फॉर्मेट है, दूसरा फॉर्मेट ये किताब में अलग अलग दिया है, लेकिन ये सबसे सिंपल प्रोसेस है। मान लीजिए आपको डाटा दिया है, साउथ जोन में 400 यूनिट सेल हुआ। मान लीजिए साउथ जोन में 400 यूनिट सेल हुआ, रेट 9 रुपया के हिसाब से टोटल हो गया 3600, टोटल हो गया 3600। वाई का जो है मान लीजिए 300 यूनिट है, 21 रुपया के हिसाब से 6300। क्लियर? उसी तरह नॉर्थ जोन का भी निकालेंगे, 600 मान लीजिए ये दिया है 500, प्राइस तो सेम रहेगा 9 और 21। ईस्ट जोन में भी दिया है 300 यूनिट, 9 रुपया के हिसाब से, 500 यूनिट 21 रुपया के हिसाब से। तो आप मल्टीप्लाई करके ये सारा चीज निकाल सकते हैं। ऐसे दिया रहता है 200 यूनिट, 300 यूनिट,
ये 9 रुपया 21 रुपया, उस हिसाब से आप यहाँ डाटा डालना है। और जब करंट एक्चुअल लेंगे, मान लो बिक्री करने के टाइम में हम 500 यूनिट, जबकि 400 यूनिट था, एक्चुअल बिक्री के टाइम में 500 यूनिट हो गया, प्राइस वही 9 रुपया रहेगा। मान ले 300 रुपया टारगेट दिए थे बजट में, लेकिन 250 यूनिट बिक्री हुआ। एक्चुअल कुछ भी हो सकता है ना, बजटेड फिगर एंड एक्चुअल फिगर इज ऑलवेज चेंज। देन अकॉर्डिंगली आपको बोला होगा कि 10% इंक्रीज करना है, सेल्स रेट भी इंक्रीज करना है। क्वेश्चन जैसा बोला होगा हम यहाँ वैसे डाल करके इसको बना सकते हैं। इसका 2 फॉर्मेट है, दोनों फॉर्मेट में बता दिया। कैसे डाटा भर्ती करना है मैं बता दिया। 1-2 इलस्ट्रेशन देखो, फिर मैं इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कशन करूंगा बजट के बारे में।